تحریک انصاف اور حکومت کے مذاکرات ڈیڈ لاک کا شکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ فریقین کے درمیان مذاکرات میں ڈیڈ لاک بدھ کی شام سے ہیں۔ ڈیڈ لاک کی وجہ تلخی اور ناقابل قبول مطالبات ہیں۔ ڈیڈ لاک ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ ناکامی پر پی ٹی آئی قیادت کو سخت کارروائی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت کو حراست میں لیا جا سکتا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ کسی جلسے جلوس کی اجازت نہیں۔ جو لوگ دفعہ 144 کی خلاف ورزی کریں گے کارروائی ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا ایک طرف مذاکرات دوسری طرف دھاوا بولیں۔ کسی مذاکرات کی ضرورت نہیں، نہ ہونے چاہیے۔ آج کے پی میں ایک طرف جنازے اور دوسری طرف دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی ہے۔ کے پی میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری ان کی حکومت کی ہے۔ ہائی کورٹ نے بڑا کلیئر کٹ کہا ہے کوئی جلسہ، کوئی جلوس، کوئی مارچ، کوئی دھرنا، کوئی چیز کی اجازت نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد ہم 100% کا جو آرڈر ہے اس کو منوان امپلیمنٹ کریں گے۔ اسلام آباد میں کسی قسم کی جلسہ جلوس دھرنا کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دھرنے اگر انہوں نے دھاوے بولنے ہیں تو میں وہ شخص ہوں گا جو کہوں گا کہ بالکل کوئی مذاکرات کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہونے چاہیے۔ اگر کسی نے مذاکرات کرنے ہیں تو وہ نارمل طریقے سے کرنے والے جائز طریقے سے بات کرے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ ایک طرف ہم کہیں دھاوا بول رہے ہیں دوسری طرف کہ ہم سے مذاکرہ کریں، کوئی صورت۔ اگر یہ دھرنا دیتے ہیں یا دھرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے کے لیے تو پھر بہت ساری چیزیں مشکل ہوتی۔ میرا تو ڈیلا کوئی رابطہ نہیں۔ اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر کو توڑ کے آ رہے ہیں کہ نہ دکان بند ہونی چاہیے، نہ کاروبار بند ہونا چاہیے، نہ سڑک بند ہونی چاہیے، نہ موبائل سروس بند ہونی چاہیے۔ میں ایگری کرتا ہوں، لیکن بتائیں کیا رہے گا؟ جو بھی لوگ یہاں 144 کی وائلیشن کریں گے، جو بھی رولز توڑیں گے، اس ہر ایک کے خلاف آپریشن ہوگا۔ اس سے زیادہ افسوسناک واقعہ نہیں ہو سکتا۔ کے پی کے میں لا اینڈ آرڈر کی ذمہ داری کے پی کی گورنمنٹ کی۔ کے پی کے والے آپ کو پتہ ہے گورنمنٹ خود انوالو ہے اور وہ دھاوا بول رہے ہیں ہمارے۔ اس کے باوجود دہشت گردی کی وجہ سے ان کو پلاٹونز چاہیے تھی 15، ہمیں یہاں پہ بھی چاہیے تھی۔ ہم نے یہاں روک کے ان کو وہاں پہ اویلیبل کری۔ آپ یہ ان سے پوچھیں کہ توجہ وہاں پہ دہشت گردی ختم ہونے کے لیے ہونی چاہیے یا یہاں پہ دھاوا بولنے کے لیے ہونی چاہیے۔ آج وہاں پہ جنازے ہو رہے ہیں اور وہاں پہ دوسری سائڈ پہ دھاوا بولنے کی تیاری ہو رہی۔ معذرت کے ساتھ یہ وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے، ارے بھائی اتنا بڑا واقعہ ہو گیا، ویسے ہی آپ سوچ لو کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، لیکن مرضی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پی ٹی آئی اور فیض حمید میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس میں ان کا کہنا تھا فیض حمید کے بغیر بانی پی ٹی آئی کی سیاسی پیدائش نہیں ہو سکتی تھی۔ لگتا ہے علی امین گنڈاپور کے اسٹیبلشمنٹ سے کہیں نہ کہیں رابطہ ہے، کیونکہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، ان کا ایپیکس کمیٹی میں بیٹھنا بھی ایک رابطہ ہے۔ پی ٹی آئی میں کوئی فرق ہے؟ مجھے بتا دینا، ایک ہی چیز ہے نا، آپ نے مجھے انڈورس کر دی ہے میری بات۔ دیر آر ٹو سائڈز آف دا سیم کوائن۔ فیض حمید کے بغیر جو ہے وہ عمران خان کی پیدائش ہی نہیں سیاسی ہو سکتی، وہ دائیے گی انہوں نے۔ ڈیفینیٹلی جو حالات آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں، مجھے بھی ان کا کوئی نہ کوئی رابطہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ضرور ہے، نہیں تو ان کی اتنی ویلیو نہ بنتی۔ ان کی ویلیو صرف اس لیے ہے کہ وزیر اعلیٰ ہیں اور وزیر اعلیٰ کے پاس ایک عہدہ ہے اور اس کی معرفت جو ہے ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ غور صاحب ہیں یا عمر ایوب صاحب ہیں یا کوئی اور لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ پرسوں ایپیکس کمیٹی میں وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی ایک رابطہ ہے کہ 4-5 گھنٹے بیٹھ کے انہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی ہے، اس میں انہوں نے اپنے صوبے کے متعلق بھی بات کی ہے، ایک فکرہ انہوں نے بانی پی ٹی آئی کے لیے کہا۔ بانی سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کے 6 مرکزی رہنما اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے آنے والوں میں سلمان اکرم راجہ، سردار لطیف کھوسا، رؤوف حسن، بیرسٹر گوہر اور فردوس شمیم نقوی شامل ہیں۔ بانی سے ملاقات کے لیے آنے والے پی ٹی آئی رہنماؤں کو جیل انتظامیہ نے انتظار کے لیے کہا ہے۔ دیکھیں خان صاحب سے بات ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ سے بات ہوگی۔ ہم نے خان صاحب سے جو ہے وہ مشاورت کرنی ہے جو ان کی طرف سے ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا ہے۔ احتساب عدالت نے 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں بشرا بی بی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے، گرفتار کر کے 26 نومبر کو پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے بشرا بی بی کے ضامن کو بھی شو کاز نوٹس جاری کر دیا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا نے اڈیالہ جیل میں سماعت کی۔ بانی پی ٹی آئی کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ بشرا بی بی کی طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائر کی گئی، جس پر نیب پروسیکیوٹر اعتراض اٹھاتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی 8 سماعتوں سے مسلسل غیر حاضر ہیں، جان بوجھ کر کیس کو طول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پروسیکیوشن ٹیم نے کہا کہ بشرا بی بی کا میڈیکل سرٹیفکیٹ لیڈی ریڈنگ اسپتال پشاور کا ہے، جبکہ اس کی تصدیق اسلام آباد سے ہوئی ہے۔ ملزموں نے 342 کا سوال نامے کا جواب بھی جمع نہیں کروایا۔
FIA ने तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। FIA ने बुशरा बीबी की मुसलसल अदम पेशी पर जमानत मनसूखी की इस्तदा की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने ऑर्डर में लिखा बुशरा बीबी जमानत का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगी। बुशरा बीबी जमानत मिलने के बाद अक्सर समातों में पेश नहीं हो रही। अदालत बुशरा बीबी की जमानत मनसूख करे। स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने बानी PTI के तोशाखाना 2 केस के मचलके मंजूर कर लिए। बानी की रिहाई की रोपकार कुछ देर बाद जारी की जाएगी। समाअत के दौरान अदालत ने पूछा बुशरा बीबी के मचलके भी मौजा नून के थे, क्या खेवट अलग है या नहीं, जिस पर वकील सफाई ने कहा कि जी खेवट अलग है और बायोमेट्रिक के बाद फर्द जारी होता है। फर्द की मालियत भी ज्यादा है जो 12 लाख रुपए है। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये तो 7 मरले का फर्द है, इनके फर्द पर लिखा हुआ है पहले कोई फर्द जारी नहीं हुआ। बायोमेट्रिक तो आप किसी दुकान से भी करवा सकते हैं, क्या इसके साथ कोई सफ़ा है? ये तो जनरल रसीद है, क्या आप वेरिफिकेशन के लिए लेकर ही नहीं गए थे? जिस पर वकील ने कहा कि पटवारी मौजूद ही नहीं, वो मसरूफ था। अलीमा खानम कहती हैं कि बानी PTI ने कहा है कोई गुमराह करे तो तवज्जो ना दे। 24 तारीख को एहतजाज का ऐलान वापस नहीं ले रहा। पुरअमन रह कर इस्लामाबाद पहुंचे। हकीकी आज़ादी के लिए हर पाकिस्तानी के निकलने का वक्त आ गया है। 24 तारीख पर कोई समझौता नहीं होगा। सब भरपूर तरीके से इस्लामाबाद आकर पुरअमन एहतजाज में शामिल हों। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा और आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफ किया गया है। इस मौके पर वज़ीर आला KP और फील्ड कमांडर्स भी मौजूद थे। लईकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा लईक। जी ज़ारा, कौमी एपेक्स कमेटी के इजलास के बाद ये फॉलो अप एक विजिट है आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पेशावर का, जिसमें उनको मजमूई सिक्योरिटी की सूरत हाल और खित्ते में जो इंसदाद दहशतगर्दी के ऑपरेशन में अब तक की पेशरफ्त हुई है उसके हवाले से एक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस ब्रीफिंग के दौरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और फील्ड कमांडर्स मौजूद थे। आर्मी चीफ की तरफ से शोहदा और गाजियों को भरपूर खिराज तहसीन पेश किया और उन्होंने जोर दिया कि मादरे वतन के दिफा के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं ये बिलाशुबा कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और लगन का वाज़ेह सबूत है। उनका ये कहना था कि तमाम तर खतरात के बावजूद सिक्योरिटी फोर्सेज और सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान भरपूर तैयारी और गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले के साथ दहशतगर्दी से नबर्द आज़मा है। दहशतगर्दों का जो नेटवर्क है उसको ख़त्म किया जा रहा है और कौमी सलामती को नुकसान पहुंचाने वाले जो गैर कानूनी स्पेक्ट्रम है उनका खात्मा भी यकीनी बनाया जाएगा। आर्मी चीफ की तरफ से जोर दिया गया कि दहशतगर्दी से निपटने के लिए कौम और सिक्योरिटी फोर्सेज का जो इज्तिमाई अज़्म है उसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा और इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि दुश्मन अनासर के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाए। उन्होंने यकीन दिलाया कि हम आहंगी और मजबूत ऑपरेशन के जरिए कानून नाफिज करने वाले इदारे, सिक्योरिटी फोर्सेज, पाक फौज मिलकर देरपा इस्तेहकाम और सलामती को यकीनी बनाएगी और इस बात को यकीनी बनाते हुए दुश्मन के जो तमाम साजिशें और अज़ाइम हैं उनको नाकाम बना दिया जाएगा। ये बताते चलूँ कि पेशावर आमद पर कोर कमांडर पेशावर ने आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्तकबाल किया। जी तारा, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का पेशावर का दौरा, आर्मी चीफ को सिक्योरिटी सूरत हाल, इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी कहते हैं बुशरा बीबी के बयान में सऊदी अरब का जिक्र बिल्कुल नहीं था। बानी PTI ने कहा है कि सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात अच्छे रहे हैं। कमर बाजवा ने सऊदी अरब और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब करने की बाकायदा साजिश की। बुशरा बीबी के बयानात सयाह को सबाक से हट कर चलाए जा रहे हैं। बुशरा बीबी ने ये नहीं कहा कि बाजवा को सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान ने कॉल की। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं बुशरा बीबी ने सऊदी अरब या मोहम्मद बिन सलमान पर कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। मोहम्मद बिन सलमान और बानी PTI के मिसाली ताल्लुकात हैं। जाली हुकूमत बानी PTI और मोहम्मद बिन सलमान के ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश कर रही है। बोगस में दोनों ममालिक के ताल्लुकात को भी खातिर में नहीं लाती। बुशरा बीबी को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए, वो गैर सियासी खातून है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं सऊदी अरब ने बानी PTI की हिमायत की थी। एहतजाज करना PTI का जमहूरी हक है, किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन धरने और जलाओ घेराव करेंगे तो एक्शन भी होगा। नहीं कहना चाहिए ना, पॉलिटिकल लेडी इमरान खान के साथ बात हुई होगी, वो जो सुना होगा उसने वो कहती है, जबकि ऐसा नहीं है। सऊदी अरब बहुत बड़ी सपोर्ट दी थी। क्राउन प्रिंस
वो भाइयों का क्लेम करता था कि हम भाई हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे दोस्ताना राजनामा ताल्लुकात रहे हैं। पाकिस्तान हमेशा सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ है। एहतजाज करना उनका हक है, जरूरी हक है। किसी को इतना नहीं होना चाहिए आए धरने देके बैठेंगे, कोई नुकसान देंगे, जलाव घेराव करेंगे, पब्लिक प्रॉपर्टीज को लॉस होगा तो एक्शन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खुद ऐसे मसाइल पैदा करेंगे, अपने लोगों को महफूज नहीं कर सकते। जो उनकी जिम्मेदारी है वफाकी हुकूमत इसको नोटिस ले। पीपल्स पार्टी सिंध के हकूक पे डाका डालने नहीं देंगे। यहाँ आपको बताएं कि हुकूमत पंजाब ने सूबे भर में 3 दिन के लिए दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। महकमा दाखिला के नोटिफिकेशन के मुताबिक पंजाब में हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों और धरनों पर पाबंदी लगा दी गई है। पाबंदी का इतलाक कल से 25 नवंबर तक होगा। काबीना कमेटी बराए अमन और अमान के इजलास में दफ़ा 144 नाफिज करने की सिफारिश की गई थी। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि सिक्योरिटी खतरात और अवामी जुलूस दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकते हैं। सियासी जलसे और जुलूस में पुलिस एहलकारों की अदम शिरकत यकीनी बनाएं। IGKP अख्तर हयात गंडापुर ने रीजनल पुलिस अफसरान को मरासला भेज दिया, जिसमें कहा कि KP पुलिस सियासी सरगर्मी का हिस्सा न बने, खिलाफ वर्जी पर महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चीफ सेक्रेटरी KP के सर्कुलर पर अमल दरामद किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट में PTI के 24 नवंबर के एहतजाज के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। जस्टिस अरशद अली ने कहा कि अवाम विफाकी हुकूमत से भी तंग है और आपकी हुकूमत से भी। वज़ीर आला अगर कहीं जाते हैं तो उनके साथ एम्बुलेंस जाती है, हैवी मशीनरी तो साथ ना ले जाएं। खैबर पख्तूनख्वा के एडवोकेट जनरल ने कहा यह दरख्वास्त नाकाबिल समाअत है। चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन किया है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होगा। रोड ब्लॉक करने के लिए 800 कंटेनर्स तो हमने नहीं रखे। फेडरेशन ने अभी से रास्ते बंद करना शुरू कर दिए हैं। अदालत विफाकी हुकूमत को भी अहकाम जारी करे कि रास्ते बंद न करे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा ये ऐसा ही कहते हैं लेकिन फिर मशीनरी इस्तेमाल होती है। रेस्क्यू मशीनरी ना होने से फैक्ट्री में लगी आग पर काबू ना पाया जा सका। गुज़श्ता एहतजाज में 3 दिन मोटरवे बंद थी। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने PTI एहतजाज के दौरान गिरफ्तार होने वाले मुजाहिरीन के खिलाफ फैसला सुना दिया। जमानत पर रिहा होने वाले 10 मुल्ज़िमान को 3-3 साल कैद की सजा सुना दी। तमाम मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया गया। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने फैसला सुनाया। मुल्ज़िमों को दहशत गर्दी की दफ़ा में बरी करते हुए कार्य सरकार में मुदाखलत और दीगर 2 दफ़ात पर सजाएं सुनाई गईं। थाना I9 पुलिस ने 2022 में फैज़ाबाद के मकाम पर एहतजाज के दौरान मुकदमा दर्ज किया था। मुकदमे में पुलिस के 10 गवाहों ने शहादतें कलमबंद कराई थीं। मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशत गर्दी, तोड़ फोड़, धावा बोलना, पुलिस के साथ लड़ाई झगड़ा और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज था। बलूचिस्तान और बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 7 खवारिज मारे गए। ISPR के मुताबिक बलूचिस्तान में 3 कार्रवाइयों में 4 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। आवारान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त नियाज उर्फ घुमन, ज़रीफ उर्फ शाहजहां के नाम से हुई। डेरा बुगटी में ऑपरेशन में 1 दहशतगर्द हलाक हुआ। केच में भी कार्रवाई में 1 दहशतगर्द मारा गया। ISPR के मुताबिक बन्नू में भी 3 खवारिज को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया गया। ऑपरेशन के दौरान हथियार, गोलियां और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द कानून नाफिज करने वाले इदारों को मतलूब और फोर्सेस और मासूम शहरियों के कत्ल में मुलविस थे। लोअर कुरम में मुसाफिर गाड़ियों पर हमले में जाँ बहक अफराद की तदफीन कर दी गई। पाड़ा चिनार में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद आबाई कब्रिस्तानों में सपुर्द खाक किया गया। जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद की लाशें पाड़ा चिनार पहुँचाई गईं, जहाँ उनकी इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा की गई और तदफीन आबाई इलाकों में की गई। गुज़श्ता रोज़ पेश आए वाक़े में कुरम प्रेस क्लब के मेंबर जनान हुसैन भी जाँ बहक हुए थे। जिंदा बचाने वाले 31 अफराद को बाहिफाजत पाड़ा चिनार पहुँचा दिया गया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कायम होने लगा। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन भी ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। तारीख में पहली बार 100 इंडेक्स 99,000 की नफसियाती हद भी उबूर कर गया। करेक्शन के बाद इंडेक्स में 1787 पॉइंट्स इजाफा हुआ। 99,116 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। दौरान कारोबार 2295 पॉइंट्स तक इजाफा देखा गया। माहिरीन का कहना IMF की जानिब से मस्बत खबरों से सरमायादारों में एतमाद देखा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी की कराची में सैर जारी है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी बल्दिया उस्मा कराची पहुंच गई। बल्दिया उस्मा कराची में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब और सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह ने ट्रॉफी का इस्तकबाल किया। इससे पहले ट्रॉफी को निजी कॉलेज ले जाया गया।
سابق کپتان سرفراز احمد نے چیمپئنز ٹرافی کے ساتھ ایونٹ میں شرکت کی. طلباء نے ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں. ٹرافی کو آج قائد اعظم کے مزار بھی لے جایا جائے گا. اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.